Today, we will be in conversation with a man who has given 10 years of his life, 10 years of his hard work and dedication to the Indian cricket team and to his country, India. Yes, we are talking about Mr. Irfan Pathan. He is not just known for his talent in cricket, but he is also known for taking a stand against things that are wrong. He is also known for voicing out his opinions against wrongdoings of the society. A man who doesn't just understand his responsibility as a cricketer, but also understands his responsibility as a human being. Today, we will not just talk to him about his life in the field of cricket, but we will also talk about him in the field of life. So, boys and girls, ladies and gentlemen, I would request you all to please get up for Mr. Irfan Pathan. Good evening, sir. How are you? Very well. Good evening. सब बढ़िया, आप बताइए आप लोग कैसे हैं सब? बहुत अच्छे हैं हम सर. And please tell us, how is your quarantine going? Look, it's like everyone else. I'm in home. Hello, Irfan sir. Hello. Hello everyone. Hello. Hello everyone. Hello. Hello, sir. Hello, Okay, can I request Hello, everyone sir. to Hey, Irfan. Assalamualaikum, sir. Hello, Irfan, sir. I'm your big fan. Hello. Thank you so much, guys. आपका प्यार बहुत important Irfan, है sir, हमें. please give me a shout out. Please. Who is that? Who is that? Aradhya. Hello Aradhya. How are you? I am fine, sir. I am Okay, huge thank fan you. of you, sir. Thank you, Aradhya. Aradhya. Thank you so much. Alhamdulillah. I would request everyone to please put their microphones off throughout the journey of the show because we don't want any interruption. So, sir, आप बड़ोदरा से हैं and अभी भी I think आप वहीं से हमें join कर रहे हैं for the live session. तो आप बचपन से वहीं पर रहे हैं. So why don't you tell us a little bit about the little Gujarati जो आपके अंदर है? Look, હું વડોદરામાં જન્મ્યો છું, વડોદરામાં ભણ્યો છું, બધું વડોદરામાં જ કર્યું છે. અને આટલા વર્ષ થઈ ગયા હું ક્રિકેટ રમ્યો જ્યારે હું 15 વર્ષનો હતો ત્યારથી હમણાં સુધી હમણાં હું 35 વર્ષનો છું. તો બધું જે પણ મને આપ્યું છે ઉપરવાળાએ વડોદરાથી જ આપ્યું છે. So Vadodara is such a nice city. God has been very kind that we live here. It's such a good city. As like whole country, there are so many things needs to get better, but there are so many beautiful things as well of this country as well as this beautiful city, cultural city of Baroda. Yes. तो सर हमने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत बड़े फूडी हैं and we have heard about your love for biryani. तो since आप गुजरात में आपने जन्म लिया और आपने अपना काफी टाइम उधर बिताया है, तो is there some गुजराती dishes जो आपको बहुत पसंद है और आप रेगुलरली खाते हो? बचपन में खाता था लालू भाई के वड़े, वो खाता था जो स्टॉल पे मिलते थे. और मतलब सी बेसिक चीज है हर गुजराती की हमारे यहाँ पर कल्चर कैसा है, वो ले जाओ दिल्ली चले जाए, वहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का, फैंसी रेस्टोरेंट्स का कल्चर यहाँ पे है, लेकिन वो कम है. ज्यादा कल्चर है स्ट्रीट स्टॉल्स का. तो ऑमलेट्स खाना और बाहर रास्ते पे वो लारी पे जितना भी बढ़िया बढ़िया खाना है वो खाना. और सरप्राइजिंगली जो राजस्थानी कुल्फी मिलती है वो बड़ी जबरदस्त रहती है राजस्थानी कुल्फी, लेकिन बड़ौदा में मिलती है बहुत बढ़िया तरीके से. पानी पूरी यहाँ की बढ़िया है. वो तो खैर बहुत वक्त से खाई नहीं है बाहर की, घर की बना के खाते हैं. ढोकला पसंद है, सब आलू वाले समोसे पसंद है. इसके अलावा गन्ने का जूस बचपन में बहुत पीते थे. सूसागर के सामने जाके, सूसागर लेक के सामने वालिद लेके जाते थे. और हर वो चीज की जो एक बड़ौदा का आम इंसान करता है, हर वो चीज खाइए. चाहे आप ढोकले से लेके, समोसे से लेके, जूस से लेके सब कुछ. लेकिन आइडियली घर का खाना बहुत पसंद है. मतलब मैं आई प्रिफर, क्योंकि मैं ट्रैवल इतना करता हूँ, so मैं प्रिफर करता हूँ कि जब मैं बड़ौदा हूँ तो मैं घर का ही खाना खाऊं. That's amazing. तो सर अगर हम थोड़ा सा आपके बचपन की तरफ जाएं, तो मतलब आप थोड़े से पढ़ाकू बच्चे थे या फिर आप बचपन से यू वर सेट कि मुझे इसी फील्ड के अंदर जाना है? पढ़ाकू तो मतलब ऐसा था कि मैं 60
65% लेके आता था। 10 साल की उम्र से मैंने क्रिकेट नहीं था। 65% कुछ कोई पढ़ाकू बच्चा नहीं लाता, पढ़ाकू बच्चा लेके आता है 80+। तो क्रिकेट का ही शौक था, तो ज्यादा वक्त क्रिकेट में जाता था। यहाँ तक कि जब मैं स्कूल चेंज किया, क्रिकेट के लिए ही चेंज किया, क्योंकि हमारी जो स्कूल थी वहाँ पे क्रिकेट नहीं था सिटी में। तो हम लोगों ने फिर एमई स्कूल में दाखिला दोनों भाइयों ने किया, और उसके बाद याद है 12 बजे स्कूल स्टार्ट होती थी, 5:30 बजे स्कूल खत्म होनी थी, हम 2:30 बजे निकल जाते थे। और सारे बच्चे, मुझे याद है जब हम लोग 2:30 बजे का जो क्लास खत्म करके निकलते थे स्टाइल में, तो बाकी बच्चे जेलस हुआ करते थे कि यार ये हम पढ़ाई कर रहे हैं और इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। हम एक्चुअली बीसीए से स्पेशल रिक्वेस्ट लेके आते थे, बीसीसीआई और बीसीसीआई से, कि हमें Ma'am, please let us also talk, ma'am. Bhavya, ma'am, please. I'm sorry. मैंने सर आपके एक इंटरव्यू में देखा था that you are very, आपकी फर्स्ट कमाई जो थी वो एक्चुअली काइट्स बेचने से आई थी, and I'm very interested in that because गुजरात, तो we have to hear this story. मुझे याद, पतंग लूटने में बड़ा शौक था, और जो कि मस्जिद में रहते थे, और वहाँ की छत बहुत, चारों जो छत थी वो एक दूसरे से कनेक्टेड थी, तो सिर्फ एक छत की हमारे पास पतंगे नहीं होती थी। हम अगर चाहे तो एक छत से कूद के दूसरी छत पे, मंदिर रहता है, वहाँ की भी जो वॉल थी वो बहुत कनेक्टेड थी, तो वहाँ पे भी जो पतंग आती थी हम खींच लेते थे। तो सब जगह से हम पतंगे खींचते थे, और भाई को बड़ा शौक था पतंगे उड़ाने का, खींचने का। मुझे भी शौक था, लेकिन अब इतना ज्यादा पतंगे मिल जाए तो आप क्या करोगे। मुझे याद है उत्तरायण का दिन था, 400-500 पतंगे पकड़ी थी, और अगले दिन मैंने उसे 79 रुपीज में बेची थी, ये मुझे याद है। और मैं घर के बाहर बैठ गया था, बहुत छोटा था मैं तब तक क्रिकेट खेलना स्टार्ट नहीं किया था वैसे, और मैंने पतंगे बेची थी, और मैं इतना खुश हुआ था कि इतनी सारी पतंगे मैंने बेची और मुझे 79 रुपीज मिले, और वो घर में और वो 79 रुपीज से बहुत कुछ मिला था। बहुत कुछ पार्टी करने का मौका मिला था। हाँ, वो वैल्यूज बहुत थे। भाई के साथ काफी पार्टी की, फैमिली में भी, यहाँ तक के मदर को भी, जो मेरी वालिदा है, उनको भी मैंने पैसे दिए थे उसमें से, कि ये मेरी पहली कमाई है। और मेरी दूसरी कमाई थी, मैंने नाड़ा बेच की कमाई थी। मुझे याद है मंगल बाजार में मैं था मेरे दोस्त के साथ, तो वो मेरी दूसरी कमाई थी। अगर फॉर दैट, एंड अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में जानने के लिए आपसे, कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक मैच के पहले ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या होता है, कि इज इट वेरी टेंस्ड, या फिर मिस्टर धोनी कैप्टन कूल बन के सबको थोड़ा काम डाउन करते थे, तो क्या माहौल होता था ड्यूरिंग बिफोर अ मैच इन द? देखिए, मैं काफी कैप्टनों के अंदर खेला हूँ। मैं सौरव गांगुली की कप्तानी में खेला हूँ, मैं राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले इनकी कप्तानी में खेला हूँ, गौतम गंभीर की कप्तानी में खेला हूँ, और धोनी की कप्तानी में खेला हूँ। सबका तरीका अलग था। धोनी ज्यादा बात नहीं करते, मीटिंग छोटी हुआ, हमेशा एग्रेशन में मानते थे, हमेशा कोशिश करते थे कि जो यंग टीम है उसको आगे लेके जाए। राहुल द्रविड़ का एक अपना वो एक पढ़ाकू बच्चा होता है ना, वैसे उनकी कप्तानी थी। अनिल कुंबले भी बिल्कुल वैसे ही थे, जो राहुल द्रविड़ की जो कप्तानी होती थी, लीडरशिप क्वालिटी उनकी बहुत कमाल की थी। तो सबका तरीका अलग, और एज ए प्लेयर आपका रिस्पॉन्सिबल है कि आप जो भी कप्तान हो उसके हिसाब से आप अपने आप को तैयार करने की कोशिश करें। और धोनी कप्तानी के जो आपने सवाल पूछा है, तो उनकी कप्तानी में बहुत ज्यादा शुरुआत में मीटिंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब बॉलिंग कोचेस आए तो बॉलिंग कोच एक आधे घंटे की मीटिंग लिया करते थे, लेकिन जो टोटल ओवरऑल मीटिंग हुआ करती थी वो 5 मिनट की हुआ करती थी। ओके, तो सर मैं आपसे और थोड़े से सवाल पूछना चाहूंगी कि जो हमारी क्रिकेट टीम है उसके अंदर फनीएस्ट मेंबर कौन था, जो थोड़ा सा मजाक करके, मतलब मस्ती करता था, बहुत मजाक करता था? हरभजन सिंह, युवराज सिंह। ओके, एंड सर हु वाज द डांसर जो हर मिनट पे डांस? सर वी हैव हर्ड दिस many times that I'm sorry, just give me a second. Yes, so Mr. Chapel
कपिल जो थे, जो अपने टाइम में ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे, उन्होंने he helped you find your talent in batting, and this is what we've read. So and when he was the coach, he helped you find your talent in batting. So आप उसके बारे में हमें कुछ बताना देखिए, चाहेंगे? बैटिंग का तो ऐसा है कि मैं जूनियर क्रिकेट खेलता था तभी बैटिंग करता था। यहाँ तक कि मुझे याद है रणजी ट्रॉफी में उससे पहले मैंने काफी रन बना चुका था। मैं बैटिंग में काफी इंटरेस्टेड था। जूनियर क्रिकेट में बड़ौदा के लिए अंडर 16 में जब मैं 16 साल का था, मैं नंबर 3 बैटिंग कर चुका था। तो जाहिर सी बात है जब कोचेज आते हैं वो आपको ऊपर बैटिंग करने के लिए बोलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अगर ये जो बहुत लोग बात करते, बहुत लोग जानते नहीं है कि ये जो ऊपर जाना बैटिंग में नंबर 3 जाना, ये एडवाइस दिया था सचिन तेंदुलकर ने, और अच्छा। जिसकी वजह से मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज ही थॉट कि मैं कर सकता हूँ, और उन्होंने ये एडवाइस दिया, राहुल द्रविड़ जो कैप्टन थे, और उस वजह से मुझे करियर में बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मतलब मेरे करियर में मैं और भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अगर वो पाजी ने शायद एडवाइस दिया नहीं होता तो ग्रेग चैपल के दिमाग में वो बात आती नहीं, शायद राहुल द्रविड़ के दिमाग में वो बात आती नहीं, वो मुझे जो मौका मिला, क्योंकि मैं नंबर 3 पे जितना भी बैटिंग किया मेरा एवरेज which is really good for any all-rounder. So I think ये सारा क्रेडिट I think पाजी को जाता है कि उन्होंने वो बात जहन में डाली बाकी कप्तानों के लोगों के, ये नहीं यार ये बंदा जब बैटिंग करता है तो नई बॉल को अच्छा खेलता है। और मेरे से बात भी क्या करते थे वो कि आप जब बैटिंग करें तो आपकी ग्रिप ऐसी है, आपको अगर थोड़ा सा रुक के खेलना है तो आप अपना रिस्क खोल दो और वैसे बैटिंग करो, एल्बो का किस तरह से इस्तेमाल करना है। सो वो इतना बड़ा प्लेयर आपके साथ रहता है तो आपको बहुत हेल्प। ओके, तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि जब T20 का मैच था, जब इंडिया वेंट इनटू फाइनल्स, दे हैड अ मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। तो मतलब कोई भी इंडियन के लिए वो कोई मैच देखे या ना देखे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो जरूर देखते हैं, बिकॉज आई थिंक ये एक मैच बड़ा क्लोज टू हार्ट होता है। So when we won the finals and when we had the trophy in the hand, तो क्या फीलिंग थी आपकी? देखिए 2007 का वर्ल्ड कप ये दिल के बहुत करीब है, और मतलब इससे बढ़िया फीलिंग कोई नहीं है। आप जब वर्ल्ड कप जीतते, और क्योंकि जब पहला वर्ल्ड कप था वो 2007 में, वो हमेशा रहेगा पहला। देखिए उससे पहले T20 क्रिकेट का कोई वर्ल्ड कप हुआ नहीं था, और जब पहला वर्ल्ड कप होता है, आई थिंक आई लॉस्ट यू, आई थिंक यू आर फ्रीज्ड। Yes, sorry sir, I think someone is messing with the system. I'm sorry, please continue. So anyways, it was a great feeling। मतलब इससे ज्यादा पहला वर्ल्ड कप, और ये हमेशा पहला रहेगा। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ था, तो चाहे लोग आके कितनी भी टीमें कितना भी वर्ल्ड कप जीत ले, पहले वर्ल्ड कप को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। और उसमें मैन ऑफ द मैच फील होना, वो ट्रॉफी हाथ में लेना, Yes, of course. साथ ही में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, आई थिंक लाइक अ ड्रीम। ओके, तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे आईपीएल के रिलेटेड है। दैट व्हेन यू गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। आई नो आप सब लोग बहुत एक्साइटेड है, बट प्लीज म्यूट पे रहिए। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन जो मैसेज बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। So my next question for you is related to IPL के IPL में जब हम होते हैं when you're playing cricket on an international, तो उस टाइम मतलब आप इधर खड़े और आपके अपने टीममेट्स उधर खड़े हैं, तो मतलब आपको कैसा लगता है उस टाइम पे? How does it feel? Are you still in the spirit के हमें उसी स्पिरिट से खेलना है, या फिर थोड़ा सा दिल में चोट पहुंचती है कि ये तो हमारी टीम? जब आप वो लेवल पे खेलते हो तो आपके लिए आपकी टीम सर्वोपरि होती है। ये सो व्हाटएवर टीम यू प्ले, अगर हम जैसे हम खेलते थे बड़ौदा के लिए, जब बड़ौदा के लिए खेलना आते थे, और फिर दिल्ली ट्रॉफी खेलते थे, या आईपीएल में मैं पंजाब के लिए खेला हूँ, दिल्ली के लिए खेला हूँ, ये जब टीमों के लिए जो भी टीम के लिए मैं खेला हूँ, हमेशा ये रहता था कि मेरी टीम को जिताना, चाहे वो कोई भी टीम है। और जिस टीम में भी आप जब खेले हो तो आपको यही रहता है कि आपको बस जिताना है। तो इवेंचुअली यस, टीम के लिए जो खेलना है उसका जो लेवल होता है वो एक अलग माइंडसेट होता है, लेकिन जब आप कोई भी क्रिकेट खेलते हो आप ऑनेस्ट तरीके से खेला है, और अगर आप ऑनेस्ट तरीके से नहीं खेलेंगे तो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हो। और तो आई थिंक कोई भी लेवल पे, इवन मुझे याद है मैं अगर प्रैक्टिस मैच भी खेलता था तो मैं यही कोशिश करता था कि पूरी जान लगा के खेली जाए। सो मुझे नहीं लगता कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए ये चीज कभी ध्यान में भी आती है। जो टीम के लिए खेल रहा है उसका यही है, उसको जिताना है कैसे भी करके, भले ही वो चीज टीम होती रहे, चाहे आप उनके साथ में खेलते हो, कभी सामने खेलते हो,
इवेंचुअली आपका काम है खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन साथ ही में आपको ये देखना है कि आपको टीम को कैसे जिताना है। ओके, तो सर मेरा सवाल आपसे नेक्स्ट ये रहेगा कि जो हमारी यंगर जनरेशन है जो क्रिकेट के फील्ड को अपना करियर बनाना चाहती है, उनके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे? अब देखिए, मेरा एडवाइस यही है कि क्रिकेट में आज के जमाने में जो पहला क्रिकेट था अभी था टैलेंट एक चीज, फिटनेस से बहुत बढ़िया तरीके से आपकी एजिलिटी है। सिर्फ लंबा भागना ही नहीं, लेकिन एजिलिटी पे आपने ध्यान दिया, फिटनेस पे ध्यान दिया, मसल्स को बढ़िया तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्ट्रांग रखा, तो आई थिंक आप अपनी जो टैलेंट है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो सर नेक्स्ट सवाल ये मैंने पर्सनली आपके लिए बनाया है कि आपका जो सेलिब्रेटरी मूव होता है आपका वो ऐसे जाता है। तो सर आजकल तो इतना क्रिकेट खेल नहीं पा रहे हैं, तो जब घर में आपको अच्छी बिरयानी मिलती है तब भी आप ऐसे ही करते हैं? नहीं, फिर ऐसे करके भाग जाता हूं। ओके, तो सर हमने काफी स्टोरी सुनी है कि मतलब पूरी इंडियन क्रिकेट टीम आके आपके घर पे बिरयानी खाती थी, तो आप भी थोड़ा हमें अपनी घर की बिरयानी का अगर राज था तो। वो मेरी वालिदा से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। I think she is the best cook and she can tell you the details of it, किस तरह से पहले वो खाया जाता है, वो फ्लेवर्स वो अलग से, तो आई थिंक मुझे लगता है आज बिरयानी खानी चाहिए मुझे वैसे। ओके, तो सर आप अपना क्वारंटाइन में टाइम कैसे स्पेंड करती हो, मेंटल, और क्या 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 कर रहे हैं आजकल आप घर पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जब लॉकडाउन हुआ था और जिस तरह से पैंडेमिक चल रही थी हुई थी, जी सर। हाँ, तो ये तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये लंबा, सबको पता था ये लंबा चलने वाला है, ऐसा कभी दुनिया में किसी ने देखा नहीं कि ऐसे हालात हुए पूरी दुनिया में। तो सब कुछ बंद था, तो ये हेलो तो ये डिसाइड किया था कि मैं अपना फिटनेस पे जरूर ध्यान दूंगा, मतलब मैं अपना वजन बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दूंगा। हफ्ते में मैं प्लान बनाया था कि हफ्ते में कम से कम 4 दिन में ट्रेनिंग करूंगा अपने घर में ही, तो मैं हफ्ते में 4 दिन ट्रेनिंग करता हूँ, हफ्ते में 1 दिन क्रिकेट भी खेलता हूँ, बस कोई थोड़ा सा अपने घर के अंदर सॉफ्ट बॉल्स और बॉलिंग करता हूँ, तो एक दिन हफ्ते में और 4 दिन वेट ट्रेनिंग करता हूँ, जहाँ पे चेस्ट, बैक, शोल्डर वो सब का ध्यान रखता हूँ वो 4 दिन में। और पूरा रिकवरी जहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, उस बच्चे हैं, भाई के बच्चे, मेरे बच्चे और मेरी कजिन के बच्चे, तो वो उनके साथ टाइम निकल जाता है, वो बहुत बिजी रखते हैं। इमरान मेरा लड़का बहुत बड़ा हो रहा है, वो 3.5 साल का हो गया है, तो he keeps me really busy as well, so टाइम निकल जाता है। It's like for me, मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो प्रिविलेज लोग हैं, जिनको फिक्र नहीं है खाने पीने की, इतना ज्यादा मतलब उनको सोचना नहीं पड़ता, तो उनके लिए ये टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताने वाला टाइम है। और जो लेस प्रिविलेज है, आई थिंक मैं हमेशा मानता हूँ कि इस वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो प्रिविलेज है वो लेस प्रिविलेज का ध्यान रखें, उनके बारे में सोचिए और अपना हाथ बढ़ाए उनको मदद करने के लिए। आई थिंक ये वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। सो पीपल लाइक मी डोंट हैव टू वरी एज मच। सो मेरे लिए इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ ये 4 महीने से, which doesn't happen। मुझे नहीं याद है मैं 4 महीने कब अपने घर में ब्रेक पे रहा हूँ इतने सालों में, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। Okay, that's really amazing. So I think family time is quality time. तो जो ये chat box है, इसके अंदर एक question हमें बहुत repeatedly आ रहा है, where people are asking कि share your moments when Irfan bhai and Yusuf sir were playing a match together. बहुत वक्त हुआ है बड़ौदा के लिए, तो हमने बहुत सारे के सामने हमें सीमिंग ट्रैक पे 200 रन चेस करने थे, हमारी विकेट गिर गई थी करीबन 50 पे, हम लोग 5 आउट हो गए थे। वहां से फिर हमने 150 की पार्टनरशिप की, भाई ने 100 बनाया, मैंने 50 बनाया, मैच जीत गए। मुंबई के सामने मुझे याद है विजय हजारे ट्रॉफी में हमें 280 चेस करने थे, वहां पे भी 80 पे 5 गिर गए थे, वहां पे भी भाई ने 100 बनाया था। राजकोट में मैच था और मैंने 50 बनाए थे, और वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था, जहाँ पे क्योंकि मेरे 50 हो गए थे, तो मुझे पता चला कि भाई के अभी कुछ 93
3 रन पे भाई खेल रहा है और जीतने के लिए 7 चाहिए और 100 के लिए भी भाई को 7 रन चाहिए थे। तो मैंने सोचा कि भाई की 100 भी करवाने और हमारी मैच हमारे हाथ में आ गई थी। बॉल्स बहुत बाकी थे और रन सिर्फ 7 ही चाहिए थे और वो पार्टनरशिप जबरदस्त हुई थी और वो मुंबई की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी। वसीम जाफर, अविष्कार सालवी, धवल कुलकर्णी, ये बहुत अच्छे गेंदबाज भी खेल रहे थे। रमेश पवार उस टाइम पे। तो वो सिचुएशन में आ गई थी। उसके बाद यहाँ तक कि मुझे फुल टॉस भी मिल रहा था तो मैं डिफेंस कर रहा था और भाई ने जाके फिर छक्का मारा, 1 रन लिया और मैच जीत गए। उसके बाद तो ये हुआ था। फिर श्रीलंका के सामने हमने दोनों भाई ने मैच जिताई थी मिलके, जहाँ पे इंडियन टीम लगभग मैच ऐसा लग रहा था सबको कि हार जाएगी और 12 रन प्रति ओवर चाहिए थे। वहां से हम लोगों ने मैच जिताया। तो आई थिंक वो सबसे मेमोरेबल मोमेंट था 2009। ओके, दैट्स रियली अमेजिंग सर। तो आप हमें थोड़ा अगर अपने बारे में बताएं, मतलब आपका फेवरेट फूड क्या है? आई एम गेसिंग बिरयानी है, बट टेल अस अबाउट योर फेवरेट फूड या फेवरेट क्विजीन। आई थिंक मुझे अगर से मैं दाल और कैबेज, हमारे शेफ को पूछ रही थी क्या खाना है, तो मैं उनको बोल रहा हूँ दाल और कैबेज। तो मेरी शक्ल दिख रही, बोले परसों तो खाया था। तो वो कुछ वैसा नहीं है, मतलब अगर पसंद आ गया उस तरह तो फिर वो हर दूसरे तीसरे दिन मैं वही मांगते रहता हूँ। लेकिन या स्टेबल फूड दाल राइस बड़ा पसंद है। मतलब अगर मुझे आप रोटी नहीं देंगे चलेगा, लेकिन राइस इज कंपलसरी। तो राइस नीडेड। बाकी तो जो नॉनवेज डिशेस वगैरह बिरयानी है वो सब, I'm basically foodie, so I never taken alcohol in my life. I never smoked in my life. So जो सेहत को खराब करती है वो चीज कभी नहीं ली है। तो बाकी बच जाता है जो प्रॉपर खाना है। तो खाने का बड़ा शौक है, तो जो भी अच्छा कुक है और अगर स्लो कुक खाना है, nothing better than that. That's true, sir. I think ये काफी इंस्पायरिंग है आजकल की जनरेशन के लिए. There are so many people who look up to you, and ये actually बहुत important. My favorite place to travel, India में, I really like Kashmir, Kerala. I think कश्मीर से बेहतर जगह शायद अगर कोई है पूरी दुनिया में तो वो, मतलब उसके लेवल पे आप शायद स्विट्जरलैंड पकड़ लीजिए और न्यूजीलैंड पकड़ लीजिए। मतलब आई थिंक उसके अलावा मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा खूबसूरत कोई जगह होगी। और यू नो दोस माउंटेन्स आर सो डिफरेंट, सो वास्ट। आप पहलगाम जाए तो आपको अलग तरीके के माउंटेन मिलेंगे, सोनमर्ग जाएंगे तो आपको अलग तरीके के माउंटेन मिलेंगे, वो पानी वहाँ का जबरदस्त। केरला आप चले जाए, केरला में भी बहुत ज्यादा अलग अलग वेदर आपको मिलेंगे। आप मुनार चले जाए, वायनाड चले जाए, आप एलपी चले जाए, तो आपको सब अलग अलग वहाँ पे तरीके का आपको ट्रैवल करने की जगह मिलेगी आपको। और फिर आई थिंक उदयपुर। I'm sorry for that disturbance, sir. Okay, तो मेरा next सवाल आपके लिए, एक्चुअली मैं एक सेक्शन से उठाती हूँ, चैट बॉक्स में बहुत आ रहा है सवाल कि प्लीज आस्क हिम फॉर वन बॉलिंग एंड बैटिंग टिप, अगर आप कुछ देना चाहेंगे तो। आई थिंक फॉर एनीथिंग, बॉलिंग और बैटिंग, द बैलेंस इज द मस्ट। ओके, सो इसको मैं कैसे एलैबोरेट करूंगा। आप अगर बॉलिंग करते हैं, आप पूरी जान लगाते हैं, 100% आप एफर्ट से बॉल करते हैं। सर आपके फैंस, मैंने ऐसा इंटरव्यू आज तक कभी नहीं किया। So sir, Karnavati University brings to you a unique interview. We are very sorry for the disturbance, sir. नहीं, so bowling और बैटिंग में आई थिंक बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कितनी भी जान लगाए, आपका बैलेंस नहीं खोना चाहिए। आप अगर कितनी भी जोर से शॉट लगाए, आप उसको रिपीट करते रहे बार बार, लेकिन वो बैलेंस के साथ आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप कोई भी चीज बार बार बैलेंस के साथ करेंगे, सो यू विल गेट बेटर एट इट। सो सपोज आपको यॉर्कर डालना है और बड़ी जोर से डालना है, आप पूरी जोर लगा आपको, और अगर आप वो डालने के बाद आपका बॉडी बैलेंस नहीं है, आपकी एक्शन टूट रही है या बैलेंस के साथ डिलीवरी के टाइम पे, शॉट मारने के टाइम पे, तो आई थिंक यू विल गेट बेटर एज अ क्रिकेटर। ओके, सो इरफान जी के फैंस जो बहुत ही बेताब हो रहे हैं माइक्रोफोन ऑफ करके बात करने के लिए, दिस इज द आंसर फॉर यू। सर मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा,
I mean, I've seen a lot of times that you're not just a responsible cricketer, but you're also a responsible human being. कि जहाँ पे भी नाइंसाफी हो रही होती है या फिर जहाँ पे भी आपको लगता है एक सोशल इशू है, आप वहाँ पे अपनी आवाज उठाते हैं. तो सर रिसेंटली मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत अवेयरनेस शुरू हुई है. तो सर क्या आप बताना चाहेंगे कि इस यंगर जनरेशन को अगर आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए मेंटल हेल्थ इज अ वेरी सीरियस इशू, बहुत बड़ा इशू है. और आई थिंक फिजिकल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबको पता है कि आपको अपने वेट का ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने विटामिन डी लेवल का ध्यान रखना है. वो अलग अलग तरीके का वो चीजों का आपको ध्यान रखना है. अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको दिक्कत आ सकती है फिजिकली. लेकिन मेंटली बहुत ज्यादा अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से तकलीफ में गुजरते हैं. और आई थिंक मेंटल हेल्थ में देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मैं ना तो कोई इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ मैं जो बोलता हूँ वैसे ही करिए, ये भी नहीं कहना चाहूंगा. अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो जरूर आप अपने दोस्तों से बात करें, आपके पेरेंट्स से बात करें, आपकी फैमिली से बात करें, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी अगर कोई भी चीज में दिक्कत हो. लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं भी बहुत चीजों से तकलीफ से गुजरा हूँ. जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत तकलीफें आती है, और हम जो क्रिकेटर है वो बहुत ज्यादा फेलियर से गुजरते हैं, ना कि सक्सेस से. अगर आप किसी भी बंदे से बात करेंगे, अगर उसने 100 मैचेस खेले हैं तो उसका सक्सेस रेशियो शायद हो सकता है 30% हो, और 40% 50 सेंचुरीज नहीं बना सकता. उसने शायद 10 या 15 100 बनाए होंगे, 20 या 25 उसने हाफ सेंचुरीज बनाए होंगे. तो उसका जो होगा फेल वो होता है, और उससे उसको डील करना होता है. तो हम लोग काफी फेलियर को डील करते हैं. हम उससे कैसे बाहर आते हैं? हम उससे बाहर आते हैं, हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं. मुझे लगता है कि अगर आप ब्लेसिंग्स को अपने काउंट करते रहेंगे, चाहे वो कुछ भी हो सकता है एवरीडे, आपकी हेल्थ हो, आपकी हेल्थ में बहुत सारी चीजें आती है. आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, आपकी आंखें ठीक से काम कर रही है, आप कोई भी बीमारी से नहीं जूझ रहे. तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग को जेन्युइनली तकलीफ होती है, लेकिन उसके बावजूद वो तकलीफों को सर करके वो आगे बढ़ते हैं. बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे जो हाथ पैसे माजूर है, लेकिन वो फिर भी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बढ़िया काम करने की कोशिश करते हैं और बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी बसर करते हैं. लेकिन जितना भी अगर आपको तकलीफ आए, अगर आप हर रोज अपनी 4 या 5 ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे, आई थिंक आपकी नेगेटिविटी साइड पे हो जाएगी. थैंक यू सो मच सर, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट एडवाइस. और एक और क्वेश्चन जो हमारी चैट बॉक्स में काफी आ रहा है कि द फीलिंग आफ्टर टेकिंग द हैट ट्रिक अगेंस्ट पाकिस्तान इन दैट टेस्ट मैच. Look, it's a great feeling because it never happened before, right? पहली ओवर में हैट्रिक किसी ने ली नहीं है, पता नहीं कौन लेगा. अगर कोई ले तो मैं चाहूंगा कि हमारा इंडियन बॉलर या तो बुमराह ले, या तो शामी ले, या तो जो भी इंडियन बॉलर हो वो ले. और बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि मैच का पहला ओवर इतना बैट्समैन ज्यादा संभाल के खेलता है, और जितना बैट्समैन संभाल के खेलेगा नहीं है. तो आई थिंक तो बैट्समैन अपनी विकेट नहीं गंवाता. इस वजह से पहली कुछ ओवर में विकेट लेना थोड़ा मुश्किल भी होता है. साथ ही में आपके पास नया बॉल होता है, तो वो आपके लिए, अगर आप क्वालिटी बॉलर हो, आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपके पास मौका भी है. मुझे नहीं लगता उससे बेहतर फीलिंग सिर्फ 3 या 4 बार आई है. तो आई थिंक ये मेरी टॉप 5 फीलिंग में से है. तो सर बेस्ट फीलिंग आपकी कब रही आपके पूरे टेन्योर में? वर्ल्ड कप सबसे पहले तो जब मुझे टेस्ट कैप मिली थी सौरव गांगुली के हाथ से, जब मैं पहला मैच खेल रहा था इंडिया के लिए, वो वर्ल्ड कप जीतना जो हम लोगों ने 2007 में वर्ल्ड कप जीता था वो, और तीसरा आई थिंक हैट्रिक. ओके, दैट्स अमेजिंग. एंड सर आपका सबसे वीक या सबसे वर्स्ट मोमेंट 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था, उससे पहले 2050 का वर्ल्ड कप हुआ था. आई थिंक वो बहुत ज्यादा वीक मोमेंट था हम सबके लिए और मेरे लिए भी. ओके. एंड सर मतलब आपका जो ये काफी लोग पूछ रहे हैं कि हाउ टू फाइंड योर पैशन इन क्रिकेट,
तो हाउ टू फाइंड योर पैशन, तो आई थिंक सबके ऊपर है वो कैसे फाइंड करेंगे, बट आपने अपना पैशन कैसे फाइंड किया क्रिकेट के अंदर? आई थिंक मुझे जब मैं बचपन में जब देखता था इंडियन टीम को खेलते हुए, कपिल बाजी के वीडियो देखता था, कपिल देव जी के, कभी कभी थोड़े बहुत क्लिप्स आ जाते थे सनी सर के बिना हेलमेट के खेलते हुए, वो कहानी किससे 83 का वर्ल्ड कप जब हम लिफ्ट करते हुए ट्रॉफी लॉट्स में देखते थे तो बड़ा इंस्पायरिंग होता था हमारे लिए। फिर इंडियन टीम में जब सचिन पाजी को ओपन करना स्टार्ट किए थे 92 में, तब तक हमें क्रिकेट की बड़ा बैट्समैन दुनिया में कोई भी नहीं है तो उनको फॉलो करते थे, वो इंस्पिरेशन हुआ करते थे। तो आई थिंक जब इतने बड़े बड़े स्टार को आप देखते हो तो आप जाहिर सी बात है आपको भी लगता है कि इनके साथ खेलना है, इनके जैसा बनना है। तो आई थिंक वो वहीं से इंस्पिरेशन आया। और अंदर से वैसे भी आप इंडिया में कहीं भी जाओ, आप रास्ते पे लोगों को खेलते हुए देखोगे तो आपका भी मन करता है यार मैं भी खेलता हूँ। और फिर अगर आप थोड़ा बहुत अच्छा खेल भी लेते हो तो फिर आपको और मजा आता है, तो आप कंटिन्यू करते हो। ओके, सो सर आई थिंक मैंने आपसे काफी सवाल पूछ लिए हैं, तो आप कोई भी हमारी जनरेशन को अगर एक मैसेज देना चाहें, और हमारी यूनिवर्सिटी से काफी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, कर्णावती यूनिवर्सिटी से, सो एनी मैसेज दैट यू हैव फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, कर्णावती यूनिवर्सिटी? आई जस्ट विश देम ऑल द लक। और काफी ज्यादा मैंने मैसेजेस देखे, बीच में आवाज भी आ रही थी, तो मतलब बहुत प्यार करते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया सबका। बस पढ़ाई करते रहे और किसी भी चीज से आप उम्मीद ना हारें। देखिए, चाहे वो आप पढ़ाई की बात हो, लाइफ की बात हो, चाहे ये जो दुनिया में पेंडेमिक चल रही है कोरोना वायरस की, इसकी बात हो, कोई भी मुश्किल आता है, आप इंसान को दुनिया का सिर्फ उम्मीद पे चलता है। और उम्मीद ऐसी चीज है कि आप उम्मीद बरकरार रखेंगे तो सब बरकरार रहता है। तो आप उम्मीद पे रहे कि सब कुछ, और उसके लिए आप बार बार काम करते रहे, मेहनत करते रहे। तो जो भी चीज आप जो चीज पे आप ड्रीम है, आपका ड्रीम है, या किसी भी चीज में आपको सक्सेसफुल होना है, उसको रिपीट करते रहे, बार बार करते रहे। अगर आप That's true, sir. Very true. Sir, थोड़े से क्वेश्चंस हैं आपके लिए यहाँ पे, जहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि what is the best advice जो आपको कभी किसी ने दी है? मेरे कोच थे बशीर शेख, जो जिनका भी इंतकाल हो गया है। तो वो बड़ौदा स्पोर्ट्स क्लब के कोच थे। बड़ौदा में जो भुतड़ी चापा ग्राउंड है वहां पे वो कोचिंग करते थे। उन्होंने मुझे दी थी एडवाइस के कभी भी अगर आपको बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना है तो आप एक्सक्यूज मत देना। मतलब जो भी करें आप अपनी गलती से या तो आप ठीक करते हो या अपने ऊपर दम पे आप कामयाब होते हो। तो जो भी करोगे आप अपने दम पे करोगे। तो इसी वजह से आपको कभी भी एक्सक्यूज नहीं देना है। आई थिंक वो एक एग्जाम्पल भी था उसके लिए, और एक पूरा उसके लिए उसके पीछे एक किस्सा भी है। वो कभी मैं पब्लिकली बात भी उसके बारे में, लेकिन जो एडवाइस है मुझे याद है क्योंकि मैंने किसी चीज का एक्सक्यूज दिया था, उन्होंने मुझे अकेले में समझाया था, डाटा सबके सामने, लेकिन समझाया अकेले कि बेटा अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है, जो आप में दम है आप खेल सकते हो, कभी आप आउट हुए तो आपकी गलती से आउट, आप अच्छे क्रिकेटर बनोगे। सिमिलरली किसी फेल हुए, आपने मेहनत नहीं की, उस वजह से फेल हुए, ना बजाय कि कोई ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जो सिलेबस में था। सर आई थिंक ये हमारा सबसे फेमस बहाना है कि ये टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन नहीं आया। सर थोड़े से मतलब लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, बहुत सारे आपके इधर फैंस हैं और चैट बॉक्स बिल्कुल भर चुका है, कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, या फिर आपने अपनी इंस्पिरेशन किससे ली? आई थिंक दो क्रिकेटर थे, दो मतलब दो तीन कितने सारे क्रिकेटर थे। वो थे सुनील गावस्कर जी थे, क्योंकि वो खेला करते, वो इतना आसान नहीं, फास्ट बॉलर को खेलते थे बिना हेलमेट के। तो आई थिंक बड़ी हिम्मत वाली बात है वो। तो वो एक इंस्पिरेशन थे। सचिन पाजी, क्योंकि छोटी सी उम्र में वो आए थे इंडिया को खेलने के लिए, बिना डरे खेलते थे। वसीम अकरम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, स्विंग कराते थे, वो एक इंस्पिरेशन थे, उनको देख के बड़ा मजा आता था। तो कह सकता हूँ ये 4-5 लोग। ओके सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़े रहने के लिए। आई थिंक वी हैव हैड अ लॉट ऑफ फन विद यू, एंड हमने आपको जाना बियॉन्ड द फील्ड ऑफ क्रिकेट। थैंक यू सो मच सर, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे होम। Thank you, sir. Thank
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. I love This you, is sir. our Thank you so much, everyone. Thank you. I don't thank you. I only Nice, sir. Thank you, sir. Fine, sir. Hi, sir. Love you, sir. Love you, Michael Irfan, sir. Alquin. Love you, Yusuf, sir. sir. Jai Hind. Thank you, Bye, Bhavya. sir.